کام تو اللہ تعالیٰ کی پاک نام سے کام کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ ابینہ شاہین صاحبہ کو کہ وہ اطلاع قرآن پاک سے نصیحت میں اور شرف حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے قرآن کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے ڈسکنیکٹ میں خود سے باتیں کر رہا نہیں موجود ہے۔ ہوں۔ مائک آف تھا۔ وہی ہاں خدا جی ہے بھائی۔ جو قطرے کو بنا دے کلزم، وہی خدا ہے جو قطرے کو بحر کرتا ہے، اسی کے کرم سے ہے یہ رنگ کوثر فضا، وہی خدا ہے جو ذرے کو کمر کرتا ہے۔ اور آج کے قرآن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ نعت کی چند اشعار پیش کروں۔ حضور حاضری کا رخت سفر سا لگتا ہے، یہ میرے سفر کا وہ احوال ہے 5 اشعار میں۔ حضور حاضری کا رخت سفر سا لگتا ہے کہ دل جو ذکر میں شیر و شکر سا لگتا ہے، ایک خوشگوار سی حیرت ہے میرے پیش نظر، ایک خوشگوار سی حیرت ہے میرے پیش نظر کہ میرا نامہ بر مجھے مشک بر سا لگتا ہے۔ حسین واہ۔ سفر پہ اب ہونے لگا روانہ میں، حسین سفر پہ اب ہونے لگا روانہ میں، ہر ایک اہل نظر اشک تر سا لگتا ہے۔ جو تیری راہ میں نکلے عظیم تر ہوئے یوں، جو تیری راہ میں نکلے عظیم تر ہوئے یوں، ہر ایک سطر میں ہر ایک سر کمر سا لگتا ہے۔ میں در بدر تھا سبحان اللہ۔ مگر پھر سنور گیا رحم، میں در بدر تھا مگر پھر سنور گیا ارحم، مجھے ملا جو بہر ثمرے صبر سے لگتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ تخلیق کار انٹرنیشنل کے بے اہتمام لاہور چیپٹر کا آغاز کیا گیا، اس میں پھر ویمن ونگ جس کے عہدیداران فلائر پہ موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ شبنم شاہین صاحبہ سیالکوٹ سے، خوش آمدید۔ تو اس پروگرام میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آج کے فلائر میں بھی شامل ہیں تاکہ اس پروگرام کو شیئر کیا جا سکے، اور کچھ مہمان ایسے ہیں جو پروگرام میں آ نہیں سکے لیکن وہ آج اپنے تبصرے کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور اس طرح جو ہمارے ریگولر بات چینج کرتے ہیں، ہم کچھ شاعرات کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد تعارف کے ساتھ اپنا کلام پیش کر سکے۔ یہ پروگرام کا فارمیٹ ہے، اور اس سلسلے میں آج جو پہلا تبصرہ ہوگا، میں اصل میں کچھ تھوڑا سا نظام کی طرف اس لیے تھوڑا سا آ رہا ہوں کہ آج کیونکہ جو پہلا سیشن ہے وہ روبینہ شاہین صاحبہ کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو یہ مہمان ہیں اس وقت، جیسے ہی ان کی رونمائی والا کام مکمل ہوگا تو یہ پھر میزبان بن جائیں گی، مشاعرے کی یہ میزبان ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا میں تعارف کی طرف سے چلوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا پروگرام رہا، اور کل انشاءاللہ اس ایک تخلیق کار کا اسپیشل ایڈیشن تیار کیا جائے گا، جس میں کل زمینی پروگرام میں آنے والے جو مہمان اور ایکٹیویٹیز اور ان کی تصویری جھلکیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 اپریل کو جو پہلا آن لائن پروگرام ہوا تھا اس کی بھی تصویری جھلکیاں، اور ساتھ آج کے پروگرام کی مکمل رپورٹنگ اور اس کے بھی اسکرین شاٹ، ان سب کو سیٹ کر کے انشاءاللہ ایک بہترین جو ہوگا ایڈیشن تقریب کا وہ کل انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر فاطمہ گل صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے ماہتیرہ سے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو میں بلا تمہید چاہوں گا کہ 8:20 ہو چکے ہیں، اور کسی وجہ سے اگر کوئی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو اسی لنک کو آپ نے دوبارہ کلک کر لینا اور میٹنگ میں آ جائیں۔ تو میں دعوت دوں گا ہماری ایک بہت خوبصورت بہترین
शायरा जो माशाल्लाह से अपने ब्लॉग में अदबी हवाले से किताबों का जायज़ा और फन शख्सियत के ऊपर बात करती हैं, और एक बेहतरीन और मुख्तसर और पुरअसर जायज़ा पेश करती हैं, और खुद भी शायरा हैं। और इनकी किताब की रुनमाई इसी प्लेटफार्म पर हो भी चुकी है, और ये तहरीक की तरफ से इनको 5 स्टार, इस वक्त प्रोग्राम 5 स्टार चल रहा था, 5 स्टार एक तहरीर अवार्ड भी इनको नॉमिनेट हो चुका है, जो इंशाल्लाह ज़मीनी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दिया जाएगा। और जैसे ही हम इनकी ज़मीन पर गए तो ये अपनी ज़मीन बदल कर फिर उधर जा चुकी थी। वो लिहाजा मुझे एक कमेंट आता है फेसबुक पे कि मैडम आप ना ऑनलाइन प्रोग्राम बड़े करवाती हैं, वो तो खुलाई मखलूक के लिए होते हैं, तो जमीनी प्रोग्राम कराएं ताकि मिट्टी के इंसान इसमें शरीक हो सके। अब जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम करने गए तो मिट्टी के इंसान शहर से ही चले गए। बड़ी माजरत, मुझे तो खुद बहुत दुख हुआ था। और माशाल्लाह किसी दफा गुल तो सनबर गजल साहबा के बारे में मैं इतना कहूँगा कि हमने जो मजलिस मुशावरत बनाई थी, और उनका उस मजलिस मुशावरत की ये चेयरपर्सन भी इंचार्ज हैं। तो और बेहतरीन सलाहियतों से लबरेज एक बेहतरीन शख्सियत मोहतरमा गुल सनबर गजल साहबा, जो आज तबसरा फरमाएंगी मोहतरमा रबीना शाहीन साहबा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रुबीना शाहीन साहिबा को बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ कि आपका पहला शेरी मजमुआ आ चुका है मंजर आम पे। आपका अदबी हवाले से ये कोई नया तारुफ नहीं है, इससे पहले भी आप अपने आपको मनवा चुकी हैं। तो मैंने तकरीब में आना था, बस कभी कभी मामलात ऐसे हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहते। तो यही तबसरा मैंने वहां पे भी करना था आपकी किताब के लिए। तो मैं आज इसको बड़ी खुशी है कि ठीक 1 से 1.5 दिन बाद, यानी मेरा अभी वो गिल्ट खत्म हो गया है आज कि मैं ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हो गई हूँ। आपका बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। अ, आपकी किताब है खामोश समंदर। ये आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपकी किताब का मुताला करने से अंदाजा होता है कि यकीनन आप एहसासात के समंदर में उतरकर लफ्जों की सूरत सीप चुनकर लाती हैं। खामोश समंदर एक ऐसी तख्लीक है जो कि न सिर्फ उनके बातनी एहसासात का आईना है, बल्कि कारी के दिल को भी किसी खामोश गहराई में ले जाता है। इस मजमुए में शामिल नातिया और हमदिया कलाम निहायत सलीके और अकीदत के साथ पेश किया गया है, जिससे उनके दीनी रुझान, रूहानी शऊर और कलम की लताफत का अंदाजा बखूबी होता है। उनके अल्फाज में एक सच्चाई और तासीर छुपी है जो पढ़ने वाले को झंझोड़ कर रख देती है। आपकी शायरी में जो सबसे नुमाया पहलू सामने आता है वो उनकी हसासियत और अल्फाज की गहराई है। वह जज्बों को महज बयान नहीं करती बल्कि उन्हें महसूस करवाती हैं। उनकी गज़लों के उन्वानात ही इस बात की गुमाजी करते हैं कि उनके यहाँ मोहब्बत, वफा, जुदाई और खामोशी जैसे मौजूआत किस कदर लतीफ और गहरे अंदाज में पेश किए गए हैं। आपके अल्फाज में ना कोई बनावट है, ना अल्फाज की नुमाइश। बात सादगी से भरपूर अंदाज से करती हैं। आपकी शायरी में एक दर्द, एक खामोश चीख, एक अनकही इल्तजा सुनाई देती है जो खामोश समंदर की तरह गहरी, पुरस्रार और बामानी है। आपका ये पहला शेरी मजमुआ यकीनन उर्दू अदब में एक खुशगवार इजाफा है। उनकी शायरी नई नस्ल के लिए एक नया जाविया है, एक नया एहसास और एक नया रंग लिए हुए है। उम्मीद है उनकी ये खूबसूरत आवाज उर्दू अदब के उफक पर देर तक गूंजती रहेगी। मैं अपने तबसरे को इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो ये शेर आप कह लें कि पूरी किताब में ऐसा एक खूबसूरत शेर है जो आपकी शख्सियत को और आपके रुझान को बहुत अच्छे अंदाज में बयान करता है। मैं उस खास कबीले से हूँ जग में लोगों, मैं उस खास कबीले से हूँ जग में लोगों, जो कि सहरा में भी गुलजार खिला देते हैं। मेरी तरफ से बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको अदबी उफक पर हमेशा चमकता सितारा बनाए रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, जो भी अल्फाज आपने दिए बहुत खूबसूरत तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी से नवाजे। आमीन आमीन।
आपका माइक आवाज ऑफ। माइक ऑफ है। माइक ऑफ है आपका, आवाज नहीं आ रही। बोलने की जल्दी हाँ मुझे भी लगता है। और हमारे साथ मुसलमान निवार बानो साहबा तशरीफ आई हैं, खुश आमदीद। और तबसरे के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, जितना बेहतरीन और बर्जिस्ता अंदाज में तबसरा किया है, मैं उनके लिए इंतहाई ममनून भी हूँ। और एक शेर भी इनकी नज़र करना चाहूँगा। और जो कल मैंने प्रोग्राम में रबीना शाहीन साहबा के लिए कहा था कि तेरी बातें भी हैं तेरी तरह मुनफरद, तेरी बातें भी हैं तेरी तरह मुनफरद, लिखने वालों की तरह सोचने वालों जैसी। तो इनका जो मेरी किताब के हवाले से चर्चा था, उसमें जो इनका एक जुमला था, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी अगली किसी किताब का नुमान रखता। मुझे इतना पसंद है कि ऐसा साथ का इंसाइक्लोपीडिया। ये मेरे लिए एक एजाज है जो इन्होंने इंशाल्लाह चलो कि अपनी एक तजवीज़ कह लें कि खताब कह लें या एक तजिया कह लें जो इन्होंने पेश किया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप पूरी जो किताबें हैं, पांचों किताबें बस तक वो पेश करूँगा, ताकि एक अच्छा सा बिलाग आप बना सकें इंशाल्लाह। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा शबनम शाहीन साहबा। अगर आप अपना माइक ऑन कर लें या कैमरा करना चाहें तो। यार मेरे पास ही शो हो रहा है, कैमरा अस्सलाम ऑन वालेकुम। नहीं ऑन करना। जी जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। अच्छा, मोहतरमा शबनम जी शाहीन साहबा के बारे में बात करना चाहूँगा कि परसों इंशाल्लाह ये हमारे प्रोग्राम में शामिल थी गिलानी साहब। और मोहतरमा शबनम शाहीन साहबा इस प्रोग्राम में खास तौर पर तशरीफ लाए। और इस प्रोग्राम की यादें भी ये शेयर कर सकती हैं कि इनको उस दिन का आना कैसे लगा। लेकिन ये अचानक चली गई, इसलिए किताब नहीं दे सके इनको। हमने कोई 150 के करीब किताबें तकसीम की थी और इनको भी देनी थी, लेकिन वो अचानक जाना पड़ा। तो ये प्रोग्राम में भी चलिए, शामिल और थी हमारी अपने बहुत तासरात। शुक्रिया। जी जी, आप वो प्रोग्राम जी के तासरात भी शेयर कर सकती हैं, और अपनी तरफ से जो वहाँ पे ना हो सकी हो बात वो भी शेयर कर सकती हैं, और अपने मुख्तलिफ तारक के साथ अपना कलाम भी पेश कर। जी, मैं सियालकोट से ताल्लुक है, मेरे शबनम शाहीन नाम है। और जो है मैं पहले भी प्रोग्राम जो है अलहमरा में होते रहे हैं, गिलानी भाई की सदारत में, उनकी ज़ाहिर है इंतज़ाम में, तो मैं वहाँ जाती रही हूँ। तो उसमें ये है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जितने भी लोग थे और बहुत अच्छा इंतजाम था। मैंने घर आके भी तारीफ की और अपने जो जितना हल्का है अहबाब का सबको बताया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा लगा। और खुसूसन मैं फिर मुबारकबाद पेश करूंगी रुबीना शाहीन बहुत साहिबा को कि बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक हो आपको। तो आपके लिए दो अशार हैं कि आदात बोलती हैं, अफकार बोलते हैं। आदात बोलती हैं, अफकार बोलते हैं, जब बोलता है आदमी अखबार बोलते हैं। वाह, और बहुत खूब। करती हैं गुफ्तगू यहाँ खामोश निगाहें, करती हैं गुफ्तगू यहाँ खामोश निगाहें, दिल वाले कब जुबान से हर बार बोलते हैं। ये वाह, मैंने खुसूसन आपके लिए जो है ना वो मैं डेडिकेट करती हूँ। जी। बहुत और शुक्रिया। अगर बहुत इजाजत हो तो थोड़ा सा पंजाबी कलाम पेश करना। जी बिल्कुल, आप अपना कलाम जी पेश जी। अरहम भाई, कीजिए। इजाजत है अगर? जी जी बिल्कुल, आप अपना कलाम पेश कीजिए। जी, मैं ना पंजाबी जरा मेरा खासा है, मैं पंजाबी कलाम के बगैर मेरा नहीं गुजारा होता ना। गुजारा नहीं होता। ठीक है, आप सच्ची पेश गल कीजिए। दसां तेनू वंड करके, यार जी नहीं सकदा कंड करके। वाह, सच्ची गल दसां तेनू वंड करके, यार जी नहीं सकदा कंड करके, तुसी नफा नुकसान दा सोचदे हो, प्यार जहर भी खांदा है खंड करके। ते वाह, नाल रख ते भार वंडावां तेरे, नाल रख ते भार वंडावां तेरे, सिरों ला के सुट ना पंड करके। वाह, ये तीन अशार थे। और एक कलाम और है कि डामाडोल यकीन दी कंध उतों, पंछी प्यार दा मार उडार जांदा, ते प्यार पीर कामल नहीं हुंदा यकीन कामल, एतबार ना होवे टुर प्यार जांदा, ते गल दिल दी मन ए खुदा खाना।
ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਗਜ਼ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੂੜ ਹੁੰਦੇ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਬਗਾਨੇ ਹੱਥ ਦਈਏ ਸਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਜੇ ਵੇਖਦਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਉਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ शबनम जे जुल्फ दे कुंडल सवार जाता ये मक्ता था जी ये पंजाबी कलाम था तो बहुत अच्छा आपके प्रोग्राम में शामिल होके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा रहूंगी जैसे भी आप समझे कि मैं क्या कहते हैं मैं शागिर्द हूँ आप लोगों के वो यानी कि जेरे साया मेरा भी जो अदबी ज़ौक है वो परवान चढ़ेगा मुझे जी बहुत अच्छा माशाल्लाह लगेगा इस महफिल जी का मजलिस का बहुत हिस्सा बनना बेहतरीन शायरा हैं आप तो इंशाल्लाह मौका मिलता रहेगा आपकी सलाहियतें नंबर यहाँ पर आती रहेंगी जी और आपका बहुत एक जो शुक्रिया शेर था कि आपका वो सच और झूठ वाला उससे मुझे एक शेर याद आया जी वो जी आपके बहुत कलाम को सलाम पेश करने के लिए जी वो मैं कह देता हूँ कि चलो तुम झूठ ही कह दो चलो तुम झूठ ही कह दो दिलो जान से तुम्हारी जी 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 सच और झूठ बहुत वाली अच्छे बात तो बहुत शुक्रिया आप आई जी और जी इंशाल्लाह अभी ज्वाइन रहिएगा और हमारे जो साथ हैं मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा तशरीफ लाई हैं जिनका ताल्लुक पोहार से है जो फ़ख्र से कहती हैं कि मैं अहमद फराज के शहर से हूँ और ये खुद भी अपने शहर की पहचान है तो बहुत बेहतरीन तबसा निवाज तहसील की हवाले से इन्होंने बहुत काम किया हुआ है और एम फिल के मुकाबले लिखे जा चुके हैं 7 किताबें हैं इनकी और अभी इंशाल्लाह ये अपना तजिया भी पेश करेंगी क्योंकि ये नस्ल ज़्यादातर लिखती हैं और मैं चाहूँगा उससे पहले जो हमारे साथ शामिल हैं मोहतरमा निगार बानो साहबा जो इंडिया से हैं और बेहतरीन शायरा हैं और बहुत कह लें कि फैमिली मेम्बर की तरह हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे साथ स्पेंड कर चुकी हैं तो मैं चाहूँगा कि निगार अपनी आपको दावत दूँ कि वो अपने कलमा से आगाह करें मोहतरमा निगार बानो नाज अपने मुख्तसर तारफ़ भी करवाते चलें ताकि जो नए हमारे मेहमान होते हैं उनके साथ आपका तारफ़ भी हो जाएगा और अपना कलाम भी पेश करें जी मोहतरमा निगार बानो साहब आपको आवाज़ आ रही है जी आ रही है आपकी जी जी आवाज। जी जी आप अपना तारफ़ और अपना कलाम पेश कीजिए बहुत शुक्रिया आपकी आमद का आपने पीडीएफ दिया था ये रुबीना शाहीन साहिबा का, मगर मैं आज इतना बिजी थी मैं उसे पढ़ नहीं पाई हूँ। चलो कोई बात नहीं कोई रुबीना बात शाहीन साहिबा आप अदब का एक दरकशिंदा सितारा हैं। माशाल्लाह आपका कलाम मैंने सुना है, बहुत अच्छा और मियारी कलाम होता है आपका। बहुत अल्लाह शुक्रिया और जोर कलम और ज्यादा मेरी दुआएं आपके साथ है। मैं आमीन पढ़ूंगी बहुत तो मैं तस्करा भी करूंगी, आपकी गजलें मुझे अच्छी लगती हैं। आपका अंदाज बिल्कुल जुदा बिल्कुल अलग है और हर शायर का अंदाज अलग ही होता है, जुदा ही होता है। जी बिल्कुल मैं अपना कलाम पेश करूं। पेश कीजिए आंख से बहती है शबनम क्या करे, आंख से बहती है शबनम क्या करे, इस खुलू से दिल का मातम क्या करे, इस खुलू से दिल का मौसम क्या करे। दर्द की लज्जत हमें मालूम है, दर्द की लज्जत हमें मालूम है, हम तेरी यादों का मातम क्या करें, वाह हम तेरी यादों का मातम क्या करें। जो मेरी आंखों में अब वीरान है, जो मेरी आंखों में अब वीरान है, उन तेरे ख्वाबों का जानम क्या करे, वाह उन तेरे ख्वाबों का जानम क्या करे। फुर्सते हालात मुमकिन ही नहीं, फुर्सते हालात मुमकिन ही नहीं, फिर मिजाजे यार बरहम क्या करे, फिर मिजाजे यार बरहम क्या करे।
زخم جب ناسور ہو جانے کو ہے، زخم جب ناسور ہو جانے کو ہے، پھر لگا کر ناز مرہم کیا کرے، آنکھ سے بہتی ہے شبنم کیا کرے، اس کلو سے موسم کیا کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوش ہو رہا کلام آپ کا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک شعر ہے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں آپ کی آواز مجھ بہت کو، دھیمے دھیمے آ میرا، رہی ہے۔ ہاں جی میرا نیٹ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا اچھا اس نے سمجھا ہی نہیں مجھ کو سمجھنا کچھ بھی، اس نے سمجھا ہی نہیں مجھ کو سمجھنا کچھ بھی، میں سمجھتا رہا اس نے مجھے سمجھا ہے بہت۔ تو آپ کی عمل کا بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا ہماری محترم بہار سے ہمارے ساتھ جوائن ہیں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ، جو بہترین قصہ نگار ہیں، رپورتاج لکھتی ہیں اور ان کی 4 کتابیں آ چکی ہیں، اور کاروان ہوا کی یہ اہم اور ایکٹیو ممبر ہیں، اور انہوں نے قصہ بھی لکھا ہے۔ اور جب آپ نے بھیجا ہے تو وہ اسی وقت قرآن شروع ہو رہا تھا، تو میں اس کا رپلائی نہیں کر سکا، کیونکہ جب وہ قرآن شروع ہوتا ہے پھر وہ ڈسکنیکٹ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نگارشات بھی اور اپنی جو بھی نظم یا تبصرہ پیش کرنا چاہیں اپنے تاثرات سے مصروف میں، اور آپ کی آمد کا شکریہ محترمہ نصرت نسیم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ارحم، آپ کے اتنے اچھے تبصرے کے لیے میں بہت تعارف کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی محبت ہے اور آپ بڑے احترام کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، جزاک اللہ، خوش رہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں روبینہ کے خاموش سمندر پہ بات کروں، تو یہ اتفاق کی بات ہے میں نثری نظمیں لکھتی ہوں، اور سمندر کے کنارے غروب آفتاب، طلوع آفتاب، یہ میرے پسندیدہ ترین مناظر ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی نظم سنا کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتی ہوں کہ نثری نظم ہے: وقت کے سمندر میں، زندگی کی کشتی میں، غم خوشی کی لہریں ہیں، دل بھی ایک سمندر ہے، کیسی کیسی موجیں ہیں، کیسے کیسے طوفان ہیں، ایک خیال آتا ہے، ایک خیال جاتا ہے، دل بھی ایک سمندر ہے، جذبات کا تلاطم ہے، دل بھی ایک سمندر ہے، اس کی گہرائی کو کون ماپ پایا ہے، کون جان پایا ہے۔ واہ کیا بات۔ شکریہ بہت بہت۔ تو سب سے پہلے تو میں بہت پیاری روبینہ شاہین کو ان کی اس پہلی کاوش پر، شعری کاوش پر، نثری کام تو ان کا زیادہ ہے، تو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ روبینہ شاہین سے جو تعارف ہوا وہ ایک نظامت کار کے طور پر ایک بہت اچھی جو پروگرام کو لے کر چلتی ہیں اور بہت اچھی نظامت کرتی ہیں۔ تو روبینہ شاہین ملی سی رنگت والی، بڑی بڑی آنکھیں، بہت پروکار سا انداز، دھیما لہجہ، اور بہت کفایت سے بولنے والی، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے پروگرام کو اور لے کر آگے چلتی ہیں۔ تو یہ میرا ان سے پہلا جو ہے تعارف ہے کچھ پروگراموں کے حوالے سے۔ ابھی ان کا شعری مجموعہ میرے سامنے ہے، خاموش سمندر اس کا نام ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے ان کی اپنی شخصیت کا پرتو ہے۔ سمندر کی خاموشی کے اندر بہت سے طوفان اور بہت کچھ جو ہے اس کے اندر پنہا ہوتے ہیں۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، تو دل جو ہے وہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک ایسا خاموش سمندر ہے دل، جس کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سے کومل جذبے، بہت کچھ اس کے اندر پنہا ہے، لیکن شاعر وہ پیغمبر ہے، شاعر کے
کہ وہ اپنے جذبوں کو بہت خوبصورت لفظوں کی بنت میں، بہت خوبصورت استعاروں میں، بہت دل ربا انداز میں اس طرح سامنے لے کر آتے ہیں کہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ پڑھنے والوں کو وہ بات اپنی بات محسوس ہوتی ہے۔ تو خاموش سمندر کا نام بہت خوبصورت، بہت مطلب ایک پہلو دار اس کا، بہت مجھے بہت اچھا لگا نام۔ تو اس کے اندر جو جی اس خاموش سمندر کا انتصاب بہت خوبصورت، یہ انتصاب کہ انہوں نے اپنے محبت بھرے جذبوں کے نام اور بہت خوبصورت انتصاب، محبت جو روشنی ہے، جو اجالا ہے، محبت کے کئی رنگ ہیں۔ تو محبت جو ہے وہ تو کائنات کی وجہ تخلیق ہے، کائنات کی بنیاد محبت ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ تو محبت کے کئی رنگ ہیں، کئی روپ ہیں، کئی شکلیں ہیں، اسے ہم محدود نہیں کر سکتے۔ اسے ہم اس کے کسی ایک جو جس قسم کی محبت ڈراموں یا فلموں میں ہوتی ہے، وہ محبت کا ایک بہت ادنا سا پہلو ہے، اس کو ہم محدود، محبت جو ہے وہ اس کے بڑے روپ ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ تو اس خاموش سمندر میں کئی لہریں، کئی موجیں ہیں، اور فطرت سے محبت ہے، رشتوں سے محبت ہے۔ سب سے بڑھ کر اس مجموعے میں مجھے ان کی نعوت جو نظر آئی ہیں وہ بہت خوبصورت لکھی ہوئی ہیں، اور اپنے پیارے نبی سے محبت کا جذبہ ہے، جو عشق کا جذبہ ہے، جو ہر مسلمان کے دل میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس عشق کو، اس جذبے کو بہت خوبصورت لفظوں میں بیان کر پاتا ہے اور لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو ایسے ہی کومل جذبوں کو، رشتوں کو انہوں نے، محبت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ حمد بھی ان کی بہت خوبصورت ہیں، اور محبت کے اور بھی کئی رنگ انہوں نے بیان کیے ہیں، بے وفائیوں کے تذکرے بھی ہیں، لوگوں کی روح بدلنے کے تذکرے بھی ہیں، اور ان کی نثری نظمیں بھی، چونکہ میں خود نثری نظمیں یہ صرف لکھتی ہوں، تو مجھے ان کی نثری نظمیں خاص طور پر پسند آئیں۔ تو یہ جو ہے مجھے بہت زیادہ وقت نہیں ملا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اچھا خاصا پڑھ لیا۔ تو یہ ہے کہ ان کی پہلی کاوش ہے، تو پہلی کاوش ہی بہت خوبصورت اور متاثر کرنے والی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آگے چل کر ان کے جو شعری مجموعے آئیں گے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ میں ان کو اس کتاب کے اوپر ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ شاعری کی دیوی ان پر مہربان رہے، اور وہ اس سے یہ جو خاموش سمندر ہے اس کی خاموشی میں جو طوفان ہے اور جو لہریں ہیں اور جو اندر جو کچھ ایک دنیا آباد ہے، اس کو وہ شعروں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں سامنے لے آئیں۔ میری دعا ہے ان کی مزید کامیابیوں کے لیے۔ بہت پیاری روبینہ کو بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیں روبینہ جی بہت شکریہ حافظ، آپ نے بہترین جائزہ پیش کیا۔ اور ابھی کیونکہ آپ نے دو باتوں کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کچھ آپ سے بات کرنے سے پہلے کہ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ سے، کہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے جو آپ کے حوالے سے تبصرہ لکھا اور ایک نظم لکھی تھی، وہ کیونکہ موبائل پہ جو میری چل رہی ہے نا دوسری یہ میٹنگ، وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو وہ آپ نے نا مجھے تخلیق کر کے وہ چینل پہ وہ بھیج دیں، وہ جو دونوں چیزیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آپ وہ پیش کریں، تو میں وہ پڑھ لوں گا تو وہ ریکارڈ پہ آ جائے گی، اور اگر وہ آ اگر جاتی ہیں پاس جی تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں سمندر کے حوالے سے ایک دو ہاں نظمیں میری اور بالکل ہیں، بالکل نثری بالکل نظمیں۔ جی جی آپ ضرور پیش اچھا، کیجیے، تو اور یہ میں صرف یہ بات مکمل کر لوں گا، آپ نا جی وہ جی جی دونوں چیزیں نا میں نے روبینہ قطع مجھے کلامی واٹس معاف ایپ آپ کر کی، دیں،
जी जी, तो सरापा लेकिन अभी नहीं हो सपास। सकती, अभी नहीं हो सकती जी क्योंकि मोबाइल तो लगा हुआ है ना। अच्छा चलो मैं करता हूँ कुछ। तो जी मोहतरमा अच्छा डॉक्टर नजमा नजमा शाहीन खोसा साहब तशरीफ लाई हैं और आपको अच्छा, इस ठीक प्रोग्राम है। में आमद पर खुश आमदीद। नहीं आप पेश कीजिए नुसरत आप ही, मैं आपको बुलाता हूँ, बस मैं अच्छा अच्छा उनका जी, अच्छा इस्तकबाल कर लूँ क्योंकि वो आई हैं जी जी, और ठीक है इस ठीक है। बार वो काफ़ी देर से आई हैं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बुलाते हैं और आपको मुबारक बहुत हो। और शुक्रिया। आपने एक ज़मीनी प्रोग्राम बहुत बड़ा किया है डेरा गाजी खां में, तो आपको उस प्रोग्राम की मुबारक हो। जी तो अभी आपसे नज बहुत इंशाल्लाह बहुत सुनते शुक्रिया, हैं। बहुत और शुक्रिया। जी मैं आपकी आमद से पहले इंशाल्लाह। मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा से उनकी नसरी नज़में सुन लें, तो फिर इसके बाद आपको बुलाते हैं। जी आपकी नुसरत नसीम साहबा। जी जी, ये है सरापा सपास, और ये नज्म मैंने लिखी बकिनारे साहिल शबे मेहताब 2020 दुबई में। जी तो है दिसंबर की आखिरी सातें और साहिल समुंदर की नर्म रेत, झाग उड़ाता पानी बहरे बेकरां, लहर दर लहर उठती मौजें, मौजों की सिम्फनी, और दिल के किनारे से ख्याल की कई लहरें टकराती हुई, शुक्र का ठाठे मारता समुंदर, लम्हा ब लम्हा मौज ब मौज, एहसास शुक्र में शराबूर, सरापा शुक्र सपास गुजार। वाह, बहुत खूबसूरत अच्छा है जी समंदर का। दूसरी आपके सनमान से ना मुझे अपनी सारी समुंदर के हवाले से मैंने बहुत सारी नसरें हम नज़में लिखी हुई हैं, हम सारे तो मिलके फिर कराची वक्तन चलते फवक्तन सुनाती रहूंगी। हैं। नजमा शाहीन साहिबा का, नजमा शाहीन खोसा साहिबा से बड़े मतलब वो तो मुझे शायद ना जाने, लेकिन वो जी बहुत अच्छा लिखती हैं और उनसे तारुफ है, तो उनको खुश आमदीद कहती हूँ मैं भी। और चलें बहुत बहुत उनसे शुक्रिया सुनते आपकी। हैं। शुक्रिया, बहुत अभी हमारे शुक्रिया। दरमियान और दो और बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ लाई हैं और दोनों हमारी कहने के सीनियर तरीन हमारी अस्सलाम वालेकुम। निगरान। जी जी, वालेकुम मैं सलाम। अभी आपका जिक्र वालेकुम ही करने लगा अस्सलाम। था। एक जी है जी प्यार का जहां और एक है मोहतरमा बुशरा फरूख साहब। और जी जी जी। आपको खुशामदीद जो हमारी मरकज़ी निगरान आला हैं और इनकी सरपरस्ती में हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी आपके आने का। जी तो जी। अभी नुसरत आपी आपने कोई सुनाना ही है नज़्म और नहीं, बस मैंने तो सुना लिया, अब जाहिर है ये आगे इनके सुनेंगे, और अपनी बुशरा फरख को और मोहतरमा मुनव्वर साहिबा को खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बुशरा भी बड़ी बहुत अच्छी और बड़ी शायरा है। इस तरह मुनव्वर साहिबा तो बहुत खूबसूरत तरन्नुम से पढ़ती हैं। अरे 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 तो ये तो बहुत फिर शुक्रिया, प्यार का जहां सलाम है। सलाम। जी जी, बहुत अच्छे लगते हैं उनसे सुन के। अच्छा अगर आपकी बहुत इजाज़त शुक्रिया। हो तो मैं एक नज़्म है वो, क्योंकि मोहतरमा बुशरा फरूख साहबा भी फिर रिकनेक्ट हो रही हैं, तो आप क्योंकि कुहाड़ से हैं और अहमद फराज साहब का तल्लुक भी कुहाड़ से था, तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि एक तो मेरे फेवरेट थे और मेरी किताब के तफसीर पर रियाजुद्दीन न्याज़ी ने भी ये लिखा था कि हम्म, ख्यालात को पेश करने की जो तरकीब है वो आपकी अहमद फराज जैसी है। तो ये उनका असर है मेरी शायरी पे, तो मेरे आइडियल थे वो। यानी और बहुत और खूब, इस वजह से बहुत खूब। मैंने एक नज़म लिखी थी क्योंकि आपने समुंदर के साथ साथ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र किया वो है मोहब्बत, तो इसलिए मैंने वो एक नज़म लिखी है मोहब्बत के जंक्शन। तो हम्म, मोहतरमा नूर जमशेद कोई साहबा तशरीफ आई हैं, आपको खुश आमदीद। ये सऊदीया से हमारी बहुत ख़ास मेहमान हैं जो कई किताबों की मुसन्नफ़ हैं और दरस व तदरीस से वाबस्ता। माशाल्लाह तो और माशाल्लाह। मैं चाहूँगा एक भी आपकी कि मैं बहुत वो अद्भुत, नज़म एक भी मोहब्बत के बहुत अद्भुत। जंक्शन, क्योंकि आप नसरी नज़में पसंद करती हैं, तो एक नसरी नज़म है जिसका उन्वान है मोहब्बत के जंक्शन। उसमें हम्म मैंने तीन लोगों को खराज तहसीन पेश किया है, हम्म जिनमें अच्छा जी। जो जो तीनों बड़े मोहब्बत के मारूफ शायर हैं, जिनमें पहला नंबर अहमद फराज और हम्म उसके बाद हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब और हम्म उसके बाद हैं वसी शाह। यानी एक हम्म सीनियर, एक दरमियाने और एक नई नस्ल के नुमाइंदा।
تو ان तीनों को मैंने इसमें खराज तहसीन पेश किया है। ये नस्मी के माशाल्लाह। साथ साथ कुछ थोड़ी सी तहकीकी भी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपके गोश गुजार करूँ। हाँ, इरशाद। जी, मोहब्बत रेलगाड़ी है, मोहब्बत रेलगाड़ी है, इसके कई जंक्शन हैं, बड़े वाह, प्यारे, वाह बड़े प्यारे हैं सब के सब, मोहब्बत सबसे प्यारी है, क्या कहने मोहब्बत मोहब्बत रेलगाड़ी है, हाँ, मोहब्बत रेलगाड़ी है, जहाँ सब आके मिलते हैं, सफर आगाज करते हैं और एक दूजे से कहते हैं चलो आओ मेरी जाना, सितारे हम सफर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात बहुत है, अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। चले चले जब हम सफर देखा कि सब मंजर ही प्यारे हैं, जमी पर भी सितारे हैं, प्यारे ही प्यारे हैं, हमारे ही माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। हैं, मगर फिर यूं हुआ जैसे किसी की आंख लग गई हो, किसी को नींद आ गई हो, किसी का हाथ छूटा हो, किसी का साथ छूटा हो, छलक जाती हैं फिर आंखें, किसी ने सच कहा था ये, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत किसी खूब, का बहुत हाथ पाने को, किसी का हाथ पाने को, किसी का साथ पाने को, किसी कंगन को पाने को, कोई बंधन निभाने को, ये आंखें भीग जाती हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, अगर बहुत अच्छे। ऐसे में ऐसा बहुत हो, उम्दा। अगर ऐसे में ऐसा हो कि अपना साथ बैठा हो, पकड़ कर हाथ वो कह दे निकल कर ख्वाब से आओ, कि ये वादे निभाओ ना, मुझे संदल बनाओ ना, बताओ वाह ना है, मेरी जाना वो अरे वाह, चाहत कितनी प्यारी है, बताओ बहुत ना उम्दा, ये बहुत चाहत उम्दा। कितनी प्यारी है, मोहब्बत रेलगाड़ी। वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि मोहतरमा डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा साहिबा अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और अपने कलाम भी पेश करें, और हमारे जो नए हैं साथी उनको भी थोड़ा सा अपना तारफ़ भी करवा दें। वैसे तो माशाल्लाह इनकी बहुत सी किताबें और बहुत से एमफिल हो चुके हैं, और डेरा गाजी खान का ये, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हम इस रीजन की बात करते हैं जिसमें सरायकस्तान है, तो उसमें ये नंबर 1 शायरा है बिलाशुबा, कोई इसमें माशाल्लाह मुबालगा नहीं। माशाल्लाह। तो और बहुत इज्जत अफसाई के आप आई जी, मोहतरमा डॉक्टर नजमा शाहीन साहब। आपको आवाज आ रही है? उनकी कुर्सी खाली है, वो उठकर शायद कहीं गई है, आ गई। मैं आ गई हूँ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम नजमा, क्या हाल है आपका? जी अभी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ माशाल्लाह, ठीक ठाक, सही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहे, शादो आबाद रहे आप लोग। बहुत शुक्रिया। ठीक है मनोवर आप ही तो इतनी प्यारी है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। नवर आप की ना, और तरन्नुम खास तौर पर मेरा दिल चाहता है मैं इन्हें कोई अपनी गजल दूं और इनसे मैं अरे 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 कि मैं इनसे कहूँ कि मेरी ये जो है ना गजल आप अपनी आवाज में पेश करें। हाँ जरूर वाकई वाकई बहुत जरूर, प्यारी। हाँ मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अजीज, इंशाल्लाह। क्या हाल है, आप कैसी हैं? जी अब मैं जी सुनाना अल्लाह है का, मैंने मेरा। जी जी आपकी सुनाइए। बारी है। जी नहीं, रुबीना आपने है, आप मौजूद हैं आपने रुबीना? और आपने हम सुनाना नहीं है, आपने लाहौर आना है रवीना से वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि आप लोगों को भी, अभी तो मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर में नहीं थी, तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कराते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी जो हमारे पाकिस्तान या बाहर से भी कोई आ सकता है तो जरूर मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी बाकी एक मुझे अच्छा, आना बहुत है, अच्छा मुझे मौजूद है। पाकिस्तान आना है। ऐसे आए मिल ना के आते हैं, नूर, जब मिल आप के आ आते रही हैं। हैं नूर, आप आ रही हैं, मिल आप के मुझे आते जस्ट बता दें, मेरी दिली ठीक है? ख्वाहिश है जब तक मैं एक बार पाकिस्तान नहीं आऊंगी मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। मेरी हैं। ख्वाहिश है मैं मैं हाँ, जरूर आऊंगी। है, अल्लाह तुम्हारा मुहिम घर है मेरा, पाकिस्तान दिली में क्या ख्वाहिश है घर मेरी। है। नूर आप आए ना, फिर मेरे से नहीं जाएंगी आप यहाँ से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर के अमेरिका पास भी तो आओ, आदमी अमेरिका भी आओ, डॉक्टर कहा जा तुम लोग सकता मिल के अमेरिका आओ। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, मेरा इंशाल्लाह। तो बेटा भी वहीं पे है ना, मैं तो इंशाल्लाह लेकिन अजीज आप आइए, जल्दी। मेरे पास आइए, आप जब भी आए तो मेरे पास आए। अभी अल्लाह इंशाल्लाह मेरे, बल्कि मेरा मोहम्मद हमजा उधर ही है, तो हाँ इंशाल्लाह अजीज मेरी कोशिश है जल्दी आऊँ, और अब उसकी जॉब शुरू हो गई है
तो अच्छा। अब आती हूँ उसके पास, रहती हूँ थोड़ा सा। मैं भी अब थक गई हूँ यहाँ पे काम करते करते। हाँ भाई मुझसे तो बस हाँ, तो मुझ तक के लिए 24 आवर लगी हुई सालगिरह हूँ ना, तो मुबारक ठीक है, है। जज़ाकल्लाह। मुझे अक्सर ऐसा महसूस हुआ करता है कि बंटवारे में मेरा उधर कुछ रह गया है। ऐसा अल्लाह रह गया है, वाकई रह गया मेरा है। एक बेटा इधर है, उसकी हौस जॉब इंशाल्लाह वाला यकम तक मुकम्मल हो रही है, दूसरा उधर है मैथम। माशाल्लाह। तो वो दोनों जो है ना, मैं एक क्या कहते हैं, डिवाइडेड हुई हूँ मैं, तो मुझे समझ कुछ नहीं आती, बस ये कि वो आता अंदर से नहीं है जैसे पाकिस्तान में वापस। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन हाँ आमीन, भाई। जहाँ रहे खुश रहे, बिल्कुल जहाँ भी बस रहे बस बेशक। बच्चे जहाँ रहे अल्लाह खुश ताला रहें बस। हर हाँ। एक के बच्चों को सलामत बच्चों की रखे खुशी अपनी में ही हिफ्ज़ हमारी अमान खुशी है। रखे, बिल्कुल आमीन, बिल्कुल ये तो है, फैक्ट है। तो अच्छा, मुझे इजाजत है, मैंने आगे सुनाना है अब, जी और जी कितना जी सुनाना है मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मैं काफी दिन के बाद प्रोग्राम में शामिल हो रही जी हूँ। जी, आप जो तो भी आप अरहम का पेश करना शिकवा चाहें। भी था, लेकिन अरहम मसला ये है कि वो कुछ ऐसे प्रोग्रामों के तो मैं उसमें नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा हो गए ना, कोई बात इसी नहीं, हो तरह से जाता है। उनका भी जैसे शामिल हो रही हूँ। आप अपना कलाम पेश कीजिए, और मोहतरमा नीला अफराज साहबा तशरीफ लाई हैं, आपको कुछ जी जी इंशाल्लाह। आप जी जी जी, मैं एक तो अपनी नज्म सुनाती हूँ। माशाल्लाह। नज्म ये मुझे बहुत पसंद है, और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी। ये मैंने लिखी थी, मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड थी, तो वहाँ पे भी एक 7 साल जश्न था उनका उर्दू का, खैरी बरदरान ने जो उर्दू स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे मैं इनवाइटेड थी, तो वहाँ पे मैंने लिखी थी और वहीं पे पढ़ी, तो फिर रजा अली आबदी साहब ने मुझसे फरमाइश करके 3 दफा सुनी ये नज्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम 4 इसमें दफा लास्ट सुने में थे। जो है ना जी, नज्म का अच्छी उन्वान है लिखती अजीब होती माशाल्लाह। है ये, अजीब होती है ये मोहब्बत, नसीब वालों के दिल में जब भी ये जागती है, तो पहले नींदें उजाड़ती है। वाह, अजीब होती है ये मोहब्बत, नसीब वालों के दिल में जब भी ये जागती है, तो पहले नींदें उजाड़ती है। ये झूमती है, ये नाचती है, ये फैलती है, ये बोलती है, हर एक लम्हा हर एक वादे को तोलती है, अपने प्यारों को मारती है। सलीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। هاتها كسرت बहुत वाह वाह। बहुत رازة بنكد كاملة ठंडे। ये फैलती है तो पेड़ बनती है, छाँव करती ये रूप देती, ये छाँव करके भी धूप देती। कभी कभी तो बस आप अपनी रकीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत उम्दा। हम सुनिएगा इसका कि लहू की सूरत रगों में दौड़े, लहू की सूरत रगों में दौड़े, ये ख्वाब बनकर नजर में ठहरे, सहाब बनकर फलक से बरसे। इसे जो दरिया में डाल आओ तो एक समंदर का रूप धारे, कहीं जो सहारा में गाड़ आओ तो फूल बनकर दिलों में महके। इसे जो दीवार में भी चुन दो तो हर कली में हो अक्स इसका, हर एक गली में हो रक्स इसका। हबीब होती है ये मोहब्बत, अजीब अजीब होती है ये होती है, क्या मोहब्बत। कहने क्या वाह वाह कहने। वाह वाह लाजवाब वाह। लाजवाब, बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत बहुत खूब। हबीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। किसी हम्म किसी को, और सुनिएगा बस कि किसी किसी को नसीब होती है ये होती है मोहब्बत। ये बहुत वाह उम्दा। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। ये सबको नसीब नहीं होती ना, किसी को नसीब होती है, बिल्कुल दिल वालों को बिल्कुल। ही नसीब होती अभी आपने 4 बार सुना अभी दी। है, हक और सच वालों को नसीब होती है। अच्छा, एक और गजल के चंद अशार सुनाती हूँ कि आज भी शाही साथ है मेरे, बिछड़े हुए एक साथ का दुख। आज भी वाह वाह। शाही साथ है मेरे, बिछड़े हुए एक साथ का दुख। दिल में आकर बैठ गया है, टूटी उजड़ी साथ का दुख। का दुख बहुत। बहुत मौत को जीवन जान के शब भर जागना है मामूल मेरा। मौत को जीवन जान के शब भर जागना है मामूल मेरा। वाह जब वाह। तक सुनती रहती हूँ मैं हिज्र में डूबी रात का दुख।
वाह खुशियों के पैराहन में मलबूस हैं यूं तो लोग सभी, खुशियों के पैराहन में मलबूस हैं यूं तो लोग सभी, कौन भला कब जान सका हाल का और हालात का बात दुख। कर दो, बात हो, बात हो। बहुत शुक्रिया। अश्कों को दरिया कर डाला, फिर दरिया को बहर किया, अश्कों को दरिया कर डाला, फिर दरिया को बहर किया, इश्क ने आँख को बख्शा है एक हिज्र भरी बरसात का दुख। वाह 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 हाकिम से वाह वाह बहुत बहुत आजकल के हालात भी मुबारक हो। सुनिएगा कि हाकिम से क्या पूछे हम, हाकिम से क्या पूछे हम, जो हाल भी प्रोग्राम है हो भी तो मैंने ही देते का। करीब हाकिम से क्या पूछे हम, जो हाल भी है मखलूक का। तपता सूरज जान सका कब कोहर में लिपटी रात का दुख। तपता सूरज जान सका कब कोहर में लिपटी रात का दुख। जी चाहे उस चारागाह का हाल कभी मैं जान सकूं, क्या बात है, बहुत खूब। जी बहुत चाहे उस चारागाह का हाल कभी मैं जान सकूं, उसको तो मालूम ना होगा हाथ से छूटे हाथ का दुख। क्या वाह कह बहुत अच्छा बहुत खूब। मेरे मौला और किसी दुख पर क्या तुझसे शिकवा हो, मेरे मौला और किसी दुख पर क्या तुझसे शिकवा हो, खुद को तन्हा कर देता है इश्क में खाई मात का दुख। दुख, बहुत खूब। शेर सुनिएगा कि चलते चलते वस्ल अचानक हिज्र की शाम में ढल जाता है, भूल जाता है। वाह चलते चलते वस्ल अचानक हिज्र की शाम में ढल जाता है। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो क्या होता है बात से निकली बात का दुख। बहुत तुम खूब। क्या जानो वाह क्या होता है बात से निकली बात का दुख। बात का बात दुख। का दुख हाँ आज भी बहुत शाही खूबसूरत साथ में मेरे बिछड़े हुए एक साथ का दुख, दिल वाह में वाह आकर बैठ गया है टूटी उजड़ी जात का दुख, टूटी बहुत उजड़ी जात का दुख। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कलाम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी अमल का भी शुक्रिया और आपके कलाम का भी। और आपके सलामत कलाम को सलाम पेश करने के लिए एक शेर आपकी नज़र, ये बजा है कि मरहम है तेरे प्यार का रंग, ये बजा है कि मरहम है तेरे प्यार का रंग, रूह के जख्म दिखाए ही कहाँ जाते हैं। वाह वाह बहुत खूब। बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सलामत डॉक्टर रहिए, साहबा। तो अभी मैं सलामत। दावत दूंगा मोहतरमा अनिला अफजाल एडवोकेट, जो इस्लामिक वुमेन मूवमेंट की चेयरमैन है, और इनकी 8 अफसानों पर मुश्तमिल एक किताब मुर्गा खोल के नाम से आ चुकी है, और उसकी तकरीबन रुनमाई भी इसी प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है। तो मैं दावत माशाल्लाह। दूंगा मोहतरमा अनिला अफजाल साहबा को कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। जी मैं सर उनको आवाज़ नहीं जा रही। नहीं, उन्होंने अपना माइक तो ओपन किया आपकी आवाज सुनकर। जी जी, उन्होंने जी नीला भी आवाज़ आ रही है आपको? ना रूहान साहब मुझे बुला ले जी जी, आपको आप ही आ जाओ, हाँ मैं बुलाते आती हैं। हूँ
प्यार का जहां मोहतरमा मुनव्वर जहां। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। और आप सबकी इजाजत से कलाम पेश करती हूँ। और मुहर्रम का महीना आ गया है, तो मैं कह रही हूँ कि ये छोटी मोटी नज्म सुना देती हूँ। मैंने एक नज्म लिखी बेटी के ऊपर, तो बेटी पे नज्म सुना देती हूँ, ठीक है ना? जी जी। मोहब्बत का हकीकत में कोई दीवान है बेटी, मोहब्बत का हकीकत में कोई दीवान है बेटी, खुदा शाहिद खुदा का ये बड़ा एहसान है बेटी, क्या खुदा बात। शाहिद खुदा का ये बड़ा एहसान है बेटी। नबी ने बेटियों को बाखुदा रहमत बनाया है, नबी ने बेटियों को बाखुदा रहमत बनाया है, हर एक माँ बाप के दिल का यूं ही अरमान है बेटी, हर एक माँ बाप के दिल का यूं ही अरमान है बेटी। मोहब्बत का हकीकत में कोई दीवान है बेटी, करे माँ बाप की खिदमत कई बेटों से बढ़कर ये, करे माँ बाप की खिदमत कई बेटों से बढ़कर ये नाजुक सिन्फ है फिर भी सदा कुर्बान है बेटी, ये नाजुक सिन्फ है फिर भी सदा कुर्बान है बेटी, जरा सी ठेस लग जाए तो ये आंसू बहाती है, जरा सी ठेस लग जाए तो ये आंसू बहाती है, जो रूठी हो मनाने में बहुत आसान है बेटी, क्या जो रूठी हो मनाने में बहुत आसान है बेटी, जहीं इतनी के हर एक फन में अपने खूब माहिर है, ज़हीन इतनी के हर एक फन में अपने खूब माहिर है, मगर माँ बाप के आगे बड़ी नादान है बेटी, मगर माँ बाप के आगे बड़ी नादान है बेटी, वो छोटे हो बड़े हो भाइयों से खौफ खाती है, वो छोटे हो बड़े हो भाइयों से खौफ खाती है, हर एक भाई के हक में हासिले फरमान है बेटी, हर एक भाई के हक में हासिले फरमान है बेटी, जहाँ बेटी नहीं होती वही घर सूना सूना है, जहाँ बेटी नहीं होती वही घर सूना सूना है, यतीमानों के हर एक घर अनोखी शान है बेटी, यतीमानों हर एक घर की अनोखी शान है बेटी, मुनव्वर मेरी ये हसरत खुदा ने पूरी कर दी है, मुनव्वर तेरी ये हसरत भी रब ने पूरी कर दी है, हकीकत मुझसे जो पूछो तो मेरी जान है बेटी, क्या बात है। हकीकत क्या बात। मुझसे ये पूछो तो मेरी जान है बेटी, मोहब्बत का हकीकत में कोई दीवान है बेटी, खुदा शाहिद खुदा का ये बड़ा एहसान है बेटी, मोहब्बत का हकीकत में कोई दीवान है बेटी। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत समाप्त करो। बहुत
بہت 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 شکریہ. شکریہ. آپ نے بیٹی کے نام بات کی ہے تو آپ کی بیٹی بھی سامنے ہی موجود ہے. جی اپنی بیٹی کو میں بہت مبارکباد دے رہی ہوں، اتنا بڑا فنکشن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کی مٹھائی کھاؤں گی، لہارا کی مٹھائی کھاؤں گی. آپ تو بڑی پیاری بیٹی ہے میری، سب بیٹیاں ہیں. نوری بھی، یہ بھی، اور منزہ نظر نہیں آ رہی. وہ بھی آ جائیں گی، ان کی طبیعت خراب، انہوں نے تبصرہ لکھا ہوا ہے وہ پیش کریں اچھا گی. اور ابھی اچھا میں آپ کے کلام کو سلام پیش کرتے ہوئے ایک شعر آپ کی نظر جو اچھا. آپ کی طرف سے ہی ہے سمجھے کہ وہ پاس ہو یا دور ہو فکر اسے رہے میری، وہ پاس ہو یا دور ہو فکر اسے رہے میری، یارب تیرا شکریہ تو نے دی بیٹی مجھے. ہائے ہائے کتنا پیارا. بہت پیارا، بہت پیارا. اور بہت ہی ابھی خوبصورت شعر. بہت شکریہ آپ کی کہ ابھی محترمہ انیلا افضال صاحبہ نے اپنا مائک آن کیا ہے. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنے خیالات کا اگر اظہار کریں. اگر وہ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے پڑھا دیجیے کیونکہ ہاں مغرب جی، کی اذان ہو گئی ہے، مجھے ہاں جانا ہے جی، نماز. چلو آپ اپنا جی آپ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سلام سے پہلے میں روبینہ صاحبہ کو بلانا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ شکریہ ادا کرتی ہیں اور ویسے بھی وہ نظامت کار ہیں آج کے پروگرام کی. میں تو ان کی کتاب کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ساتھ دے رہا تھا کہ جی کتابی جی حوالے سے، جی. تو لیکن مشاعرے کی وہ میزبان ہے. تو ابھی آپ پھر اپنی کہہ رہے کہ اپنا اپنے خیالات کا اور مائک اپنے سنبھال کلام کا لے، اظہار کیجیے. روبینہ اور صاحبہ نہیں مائک پھر سنبھال لے. نہیں آپ پہلے آ جائیں نا، پھر میں آپ کے بعد ان کو بلاتا ہوں. جی محترمہ نور جمشید پوری صاحب کا نور برا سلام ہم قبول کر جی جی. وہ پہلے سلام پیش کرتے ہیں، نور بھرا سلام پیش کرتے ہیں. تخلیق کار آج جو یکجا ہوئے انہیں، تخلیق کار آج جو یکجا ہوئے انہیں، کرنا ہے احترام سے پہلے مجھے سلام. وعلیکم السلام، جیتے رہیں. وعلیکم السلام. اللہ میاں دونوں جہانوں کی خوشیاں دے آپ کو. آمین آمین. جی جی بس جو محرم کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے ایک شعر کے نیا سال ہمارا شروع ہوا ہے. تو جو بھی ہوئی خطائیں انہیں معاف کر ہمیں، جو بھی ہوئی خطائیں انہیں معاف کر ہمیں، خوشیاں نئی تو دے دے نئے سال میں خدا، آمین خوشیاں سما نئی تو دے دے نئے سال میں خدا. آمین اور سما آپ آمین. کی اجازت سے چند ایک متفرق اشعار، اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل پیش کروں گی. یہ شعر دیکھیں کہ اگر قسمت میں تپتی دھوپ میں جلنا ہی لکھا ہو، اگر قسمت میں تپتی دھوپ میں جلنا ہی لکھا ہو، تو بیٹھو جس شجر کے سائے وہ بھی سوکھ جاتا ہے، واہ واہ بیٹھو واہ جس واہ شجر کیا کے کہنے، سائے وہ بھی سوکھ جاتا ہے. سوکھ جاتا ہے. جی بہت شکریہ. اور یہ ایک شعر بہت ہے ہی کہ خوبصورت شعر ہے، بہت حقیقت سے بھرپور. بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیں کہ کرتا نہیں ہے یاد کبھی بھول کر مجھے، ہائے ہائے. کرتا نہیں ہے یاد کبھی بھول کر مجھے، شاید چھپا کے دل میں کہیں بھول ہی گیا، شاید چھپا کے دل میں کہیں بھول ہی گیا. بہت شکریہ. اتنا اور یہ ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے. اتنا چھپا کے رکھا کہ خود بھول ہی گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں ہم اتنی حفاظت سے رکھ دیتے ہیں کہ واقعی میں پھر وہ بھول جاتے ہیں. اتنا سنبھال دیں کہ وہ زیادہ ہی سنبھالی جاتی ہے. جی جی. غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں آپ سب کی اجازت سے. یہ شعر دیکھیں کہ کچھ نہ پایا کبھی عداوت میں، کچھ نہ پایا کبھی عداوت میں، زندگی مل گئی رفاقت میں، زندگی مل گئی رفاقت میں. اور شعر ہے کہ چل گئے چال وہ ہمیشہ ہی، چل گئے چال وہ ہمیشہ ہی، ہم تو مارے گئے شرافت میں، ہم تو مارے گئے شرافت میں. اور یہ شعر ہے کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، صاف بچ جائے گا عدالت میں، صاف بچ جائے گا عدالت میں. دیکھنا صبر کا صلہ میں تو،
देखना सब्र का सिला मैं तो, है यकीन पाऊंगी कयामत में, है यकीन पाऊंगी कयामत में। और ये शेर आप सबके वाले हैं। यूं तो शिकवे बहुत हैं तुझसे मगर, यूं तो शिकवे बहुत हैं तुझसे मगर, लब न खोले कभी शिकायत में, लब न खोले कभी शिकायत में। और आज के बच्चे कौन समझाए, आज के बच्चे कौन समझाए, कान धरते हैं कब हिदायत में, कान धरते हैं कब हिदायत में। और रोज दिखती हैं बेटियां अब तो, रोज दिखती हैं बेटियां अब तो, खून से लिखी हर इबारत में, खून से लिखी हर इबारत में। इसे देखिए कि दो जहां देख मिल ही जाएगा, दो जहां देख मिल ही जाएगा, तुझको माँ बाप की इताअत में, तुझको माँ बाप की इताअत में। रंजो गम आह कुछ मोहब्बत की, रंजो गम आह कुछ मोहब्बत की, दे गया मुझको वो विरासत में, दे गया मुझको वो विरासत में। हो गया टुकड़े टुकड़े दीन धर्म, हो गया टुकड़े टुकड़े दीन धर्म, चल रहा कौन अब रिवायत में, चल रहा कौन अब रिवायत में। और ये शेर है कि एक ही हो यकीन की ईंट मगर, एक ही हो यकीन की ईंट मगर, चाहिए प्यार की इमारत में, चाहिए प्यार की इमारत में। इस तरह मक्ता शेर है कि क्यों ना करते के बाद मुद्दत के, क्यों ना करते के बाद मुद्दत के, मुझको बचपन मिला शरारत में, मुझको बचपन मिला शरारत में। और ये मक्ते का शेर है कि गिर गई आंख से तो नूर बनी, गिर गई आंख से तो नूर बनी, अश्क की बूंद एक नदामत में, अश्क की बूंद एक नदामत में। कुछ न पाया कभी अदावत में, जिंदगी मिल गई रफाकत में। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खास बहुत तौर पे शुक्रिया। वो जो शजर वाला शेर था ना कि किसी भी छांव में बैठे तो एक ही जी जैसा हालात होते, वो बहुत खूबसूरत जी, बस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं अच्छे से। बहुत खूबसूरत। इजाजत है, मैं अब अजान होके देर हो गई, जी फिर कभी जी इंशाल्लाह। जी 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 एक ठीक है। शर्त पे दुआ जज़ाकल्लाह। दुआ जी कीजिए। जरूर, जी जरूर जरूर। आप सबके अब दुआ में शामिल है माशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगा कि साहिबे जो तकरीब हैं, तकरीब की जो साहिबा हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार और अपने मेहमानों का शुक्रिया और अपनी किताब और अपने कलाम के बारे में कुछ इजहार करें। मोहतरमा रुबीना शाहीन। जी बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, इस महफिल को सजाने का और इतने खूबसूरत अल्फाज पेश करने का। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। मुनव्वर जहाँ पी, नूर जमशेदपुरी साहिबा, नजमा शाहीन खोसा साहिबा, निगार बनो नाज साहिबा, और भी जितने मेहमान आए, गुल सनोबर साहिबा और अनीला एडवोकेट भी थी, वो भी मेरा ख्याल चली गई हैं। तो आप आए अपने खूबसूरत जज्बों का इजहार किया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि तख्लीक कार के इस प्लेटफॉर्म पर हमारी मुलाकात आप जैसी खूबसूरत और मोहब्बत भरी शख्सियात से हुई है। इसे अपनी खुशकिस्मती तस्वर करती हूँ, क्योंकि जिंदगी की ये रौनक आप सबके दम से है। किताब खामोश समंदर के लिए मुबारकबाद देने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपके खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और दिली मशकूर हूँ मैं आप सबकी कि आप आए और आपने अपना कलाम भी सुनाया और मेरे कलाम को भी सराहा, मेरी किताब को भी सराहा। तो मैं आपकी खिदमत में अपना एक कलाम पेश करती हूँ। आप सबकी इजाजत से। तेरी आंखों में चमकते हैं सितारे,
تیری آنکھوں میں چمکتے ہیں ستارے، تم وفا کی آس ایک چاند ہو تم، ان لبوں پر ہے تبسم جیسی جھلمل، ان لبوں پر ہے تبسم جیسی جھلمل، تم ہو ایک کرتاس ایک چاند ہو تم، جیسے یہ رخسار ہیں دو دہکے کندن، جیسے یہ رخسار ہیں دو دہکے کندن، دیر پا احساس ایک چاند ہو تم، بال ماتھے پر سنہرے ہیں چمکتے، بال ماتھے پر سنہرے ہیں چمکتے، ٹھنڈ کا احساس ایک چاند ہو تم، چاند سے پر نور ہو آنگن یہ گھر کا، چاند سے پر نور ہو آنگن یہ گھر کا، بس بہت ہی خاص ہو ایک چاند ہو تم، تیری آنکھوں میں چمکتے ہیں ستارے، تم وفا کی آس ایک چاند ہو تم۔ اور ایک اور آپ سب کی سماعتوں کی نظر میں ایک غزل کرتی ہوں۔ چاک پہ رکھی ہوئی مورت ہوں میں، چاک پہ رکھی ہوئی مورت ہوں میں، وقت بدلے گا میرے سب خد و خال، چاک پہ رکھی ہوئی مورت ہوں میں، وقت بدلے گا میرے سب خد و خال، راز چہرے کی شکن میں گم ہوئے، راز چہرے کی شکن میں گم ہوئے، ہو بیاں یوں عمر رفتہ کا بھی حال، زرد آنکھیں کر دیں افسانے بیاں، زرد آنکھیں کر دیں افسانے بیاں، اور پلک جھپکتے ہی گزرے ماہو سال، تھک گئے لڑتے ہوئے دنیا سے ہم، تھک گئے لڑتے ہوئے دنیا سے ہم، جینا پڑتا ہے گر جینا محال، جینا پڑتا ہے ہو گر جینا محال، چپ کا تالا ہے لبوں پر اہل دل، چپ کا تالا ہے لبوں پر اہل دل، ہون تماشائی چلے کیا وقت چال، چاک پہ رکھی ہوئی مورت ہوں میں، وقت بدلے گا میرے سب خد و خال۔ بہت شکریہ آپ سب کی باتوں کا۔ بہت ماشاء اللہ۔ میرا خیال ہے کہ سارے مہمان اپنی بات کر چکے ہیں، تو ہم پروگرام کو بطور اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تو کیونکہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارے اگلے جتنے بھی پروگرام ہیں تو کل کے پروگرام کے بعد کل محترم بشرا فرید صاحبہ کا پروگرام ہے، اس کے بعد اگلے سارے محرم کے حوالے سے ہوں گے۔ تو ایک شعر محرم کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے میں چاہوں گا ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ غم حسین میں آنسو ذرا بہا کر دیکھ، غم حسین میں آنسو ذرا بہا کر دیکھ، وضو کریں گے فرشتے اسی تلوت سے۔ واہ کیا تو خوب۔ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ۔ کل کے پروگرام۔ اللہ حافظ۔